Hello everyone, I'm Prerna and this is part 3 of crop production and management. Okay, I have already uploaded first and second part. Please watch these parts before watching this part. Okay, let's start. So firstly, we'll see what we have read in part 1 and part 2. We'll just revise, okay, the important points. Every organism on the earth needs food. Regular production, management, and distribution of food is necessary. We cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. This practice is called agriculture. Okay, there are two types of crops based on the season, Rabi and Kharif. Rabi crops are those that are grown in winter season, like wheat. Okay, and Kharif crops are those that are grown in rainy season, like maize, paddy. Okay, so cultivation of crops involves several activities. I already told you that in agriculture, uh, for the cultivation of crops, there are many steps that we need to be follow. Okay, so these are the steps are preparation of soil. This is the first step. After that, we sow the seeds, and before sowing the seeds, what we do, we select the healthy seeds. Okay, so we'll select the healthy seeds, then we'll sow the seeds, sowing of seeds. We have read about transplantation also. Then after sowing of seeds, what we do, we add manure and fertilizer. After that, irrigation. And in irrigation, we have read about two types of methods. These were traditional methods of irrigation and modern methods of irrigation. And in modern methods of irrigation, we have read about the sprinkler system of irrigation and the drip irrigation. These two modern methods of irrigation, sprinkler system and drip irrigation, these are very important for you. And why these are important? Because they need very less water. At places where there is shortage of water, we can use these methods, and these methods are water efficient and there is no labor needed. कोई मैनुअल हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, लेबर की ज़रूरत नहीं है, and water is also used up in very less quantity. So these two methods, these are drip irrigation and sprinkler system, these two methods are very effective. Okay, let's see what is the next step now after irrigation. So after irrigation, what is the next step? The next step is protection from weeds. अब हम पढ़ेंगे कि हम weeds से फार्म को, क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे. सो बिफोर प्रोटेक्टिंग द फील्ड फ्रॉम वीड्स, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ वीड्स. सो व्हाट इज़ अ वीड? लेट्स सी. सो वीड्स क्या होते हैं देखेंगे हम. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. ठीक है, क्रॉप के साथ कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं थी. मतलब जो हमने सो नहीं किए, जो हमने ग्रो नहीं किए, दे जस्ट ग्रो. दीज आर अनडिज़ायरेबल, दीज आर अनवांटेड प्लांट्स दैट आर नॉट नीडेड देयर. ओके, सो दीज अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. ऐसे प्लांट्स जो अनवांटेड हैं, मतलब जो ग्रो नहीं किए गए हैं, दीज जस्ट ग्रो बाय देमसेल्व्स, these plants are called weeds. Okay, these undesirable plants are called weeds. So I hope you have understand the meaning of weeds. Now we'll see how weeds are removed. Okay, why removal of weeds is necessary. Why weeds are removed? weeds को remove करना क्यों ज़रूरी है? अगर वो खुद से grow हो गए हैं crops के साथ, तो उन्हें हम वैसे ही रहने क्यों नहीं दे सकते? Why we remove these weeds? Why we need to remove these weeds? इन weeds को हम remove क्यों करते हैं? ठीक है, see, the removal of weeds is called weeding. First of all, जो हम weeds को remove करते हैं उस process को हम बोलते हैं weeding. और weeds को remove क्यों किया जाता है? देखो, weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and लाइट. वीड्स क्या करते हैं? क्रॉप प्लांट्स के साथ कम्पीट करते हैं. वो क्रॉप प्लांट्स के वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट, इस सब को इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इसीलिए वीड्स को वहाँ से रिमूव करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप. जब वो क्रॉप द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले, जो क्रॉप्स को इस्तेमाल करने हैं, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, एवरीथिंग, लाइट, स्पेस, एवरीथिंग,
वो वीड्स भी इस्तेमाल करेंगे, सो देयर विल बी अ कॉम्पिटिशन। ओके, तो उससे क्या होगा, क्रॉप की ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। सपोज आप खाना खाते हैं, आप जितना खाना खाते हैं, सपोज आप लंच के अंदर 2 रोटी खाते हैं, 2 चपाती खाते हैं, ठीक है, आप रोज़ 2 चपाती खा रहे हैं, बट क्या होगा कि आपके घर पे आपके पास एक फ्रेंड आपका रहने के लिए आ जाता है और यू ओनली हैव दोज 2 चपातीज टू ईट। ओके, आपको एक चपाती उसको शेयर करनी पड़ेगी एवरी डे, ठीक है। अब क्या होगा, आप एक ही चपाती खा रहे हो, ठीक है, एक अपने फ्रेंड को दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, आप एक ही खाओगे तो आपको जितनी बॉडी में रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, या आपको जितनी भूख है, तो वो आपकी पूरी नहीं होगी रिक्वायरमेंट, राइट। तो क्या होगा, आपकी भूख भी शांत नहीं होगी, ठीक है, और आपको जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको आधी मिल रही है, बिकॉज आधी तो आपने बांट दी, अपने फ्रेंड को दे दी, राइट। तो उससे क्या होगा, आपकी ग्रोथ अफेक्ट होगी। अगर आपको जितना रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, आप उससे हाफ़ ही ले रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ अफेक्ट होगी। इन द सेम वे क्रॉप्स को जो रिक्वायरमेंट्स है, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, लाइट, स्पेस, एवरीथिंग, बीट एवरीथिंग, जब वो शेयर हो रहा है, और कौन शेयर कर रहा है उनको, वीड्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स वीड्स शेयर कर रहे हैं उसको, तो जितना रिक्वायरमेंट क्रॉप को है वो रिक्वायरमेंट उनका पूरा नहीं होगा, और पूरा नहीं होगा तो उनकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ अफेक्ट होगी, ग्रोथ अफेक्ट होगी तो उनकी यील्ड अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से जो क्वांटिटी होगी क्रॉप की और क्वालिटी होगी फूड ग्रेन्स की, दैट विल अफेक्ट, वो क्या होगी, कम होगी। इसीलिए वीड्स को रिमूव करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज़ क्रॉप्स के हिस्से के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, क्रॉप के हिस्से का जो स्पेस है, लाइट है, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, वो शेयर हो जाएंगे, और कौन शेयर करेगा उसे, वीड्स शेयर करेंगे। दैट्स वाई वीड्स नीड्स टू बी रिमूव्ड। ओके, सो नाउ वी हैव लर्नड what are weeds and why we need to remove the weeds. Now we will learn that how weeds are removed. weeds को remove करते कैसे हैं, okay? Let's see how weeds are removed. So first process for removing of weeds is tilling. जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, सो फर्स्ट स्टेप वॉज प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉयल में हमने ये वर्ड सुना था, प्लोइंग एंड टिलिंग ऑफ द सॉयल, जिसमें था लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉयल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। तो जब हम टिलिंग करते हैं तब वीड्स रिमूव होते हैं। कैसे, देखो, जब फील्ड खाली है काफ़ी टाइम से, ठीक है, उसे तैयार करना है, उसकी सॉयल को तैयार करना है ताकि नेक्स्ट क्रॉप ग्रो की जा सके। तो खाली फील्ड में भी क्या होता है, जो खाली छोड़ रखा है उसको लेफ़्ट ओवर फार्म लैंड है, तो उसमें भी कुछ प्लांट्स अपने आप ग्रो कर जाते हैं। आप देखोगे एक जगह है, एक फील्ड है, वहाँ पे अपने आप से घास उगने लग जाती है, ठीक है, आप वहाँ पे कोई सीड्स नहीं डालते हो, कोई पानी नहीं देते हो, ठीक है, इट जस्ट ग्रोज। ओके, तो अपने आप से जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं। तो जब टिलिंग की प्रोसेस की जाती है, सॉयल को टर्न किया जाता है, लूज़ किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो वो वीड्स होते हैं, वो जो प्लांट्स होते हैं जो ऑलरेडी ग्रो किए हुए हैं, वो अपने जड़ से उखड़ जाते हैं, ठीक है। और जब वो जड़ से उखड़ जाएंगे, मिट्टी से उखड़ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, दे विल बी डेड, बिकॉज दे विल नॉट गेट एनी वाटर एंड न्यूट्रिएंट। अगर आप एक प्लांट को जड़ से उखाड़ देते हो तो वो मर जाता है, ठीक है। तो ऐसे जब हम टिलिंग की प्रोसेस होती है तो इस तरह से वीड्स रिमूव हो जाते हैं, मतलब वो अपरूट हो जाते हैं, ठीक है, और वो मर जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है, जब वो मर जाते हैं तो मरने के बाद वो मिट्टी में ही मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। एंड व्हेन दीज weeds, dead weeds mix in the soil, they will add humus to the soil, ठीक है। उससे क्या होगा, वो मैन्योर के जैसे काम करेंगे और वो आने वाली क्रॉप को, जो क्रॉप ग्रो होगी, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो जब वो वीड्स अलाइव हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्पेस, न्यूट्रिएंट्स, लाइट, दे आर यूजिंग एवरीथिंग, but now they are dead because of the process of tilling. They will mix into the soil and they will add up the nutrients to the soil. That nutrients will be used by the upcoming crop. Okay, so what is written here in tilling?
Tilling before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. ठीक है, वह weeds मरने के बाद, dry up होने के बाद soil के अंदर ही mix हो जाते हैं. ठीक है, and they will add nutrients to the soil. ठीक है, so this is the first step for removal of weeds. Next step is manual removal of weeds. Manual, what do you mean by manual? मैनुअल वर्ड का मतलब क्या होता है? मैनुअल मीन्स बाय मैन पावर और वी कैन से बाय हैंड. ओके, मैनुअल रिमूवल मतलब हाथ से खींचकर ही उसको निकाल देना, हाथ से या फिर कोई औजार वगैरह, टूल वगैरह का इस्तेमाल करके भी हम उसे निकाल सकते हैं. ठीक है, जैसे हाथ से खींच के भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज वी कैन यूज़ खुरपी. ठीक है, खुरपी वर्ड आपने सुना होगा. ये एक तरह से सबके घर में रहता है, जिसके घर पे छोटा मोटा गार्डन होगा ना, सबके पास खुरपी रहती है, आपने देखी भी होगी. तो खुरपी से भी वो वीड्स को रिमूव कर देते हैं. सो दिस इज़ द सेकेंड मेथड. वीड्स को रिमूव करने के लिए मैनुअली अपने हाथों से ही वो वीड्स को रिमूव कर देते हैं. एंड थर्ड एंड द बेस्ट मेथड, मतलब मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज़ बाय यूजिंग वीडीसाइड्स. सो व्हाट आर वीडीसाइड्स नाउ? हम वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करके वीड्स को रिमूव कर सकते हैं. एक्चुअली रिमूव नहीं, वीड्स को हम उस केस में क्या मार देते हैं. ठीक है, वी कैन किल वीड्स. ठीक है, तो वीडीसाइड्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल्स दैट आर यूज टू किल वीड्स. ऐसे केमिकल्स जो वीड्स को मारने के काम आते हैं. मतलब उन केमिकल्स को जैसे ही हम वीड्स पर स्प्रे करते हैं तो वो केमिकल्स से क्या हो जाता है, वो जो वीड्स होते हैं वो मर जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2,4-D. 2,4-D एक केमिकल है जो कि एक वीडीसाइड है. सो जब इसको हम स्प्रे करते हैं फार्म के ऊपर, मतलब एक खेत में क्रॉप्स के ऊपर जहाँ पे वीड्स वगैरह भी लगे हुए हैं, तो जो वीड्स होते हैं वो मर जाते हैं. सो दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स. वीड्स को मारने के लिए वीडीसाइड्स को, इन केमिकल्स को फील्ड में स्प्रे किया जाता है. देखो, जब हम वीड्स पे स्प्रे करते हैं तो ऑब्वियसली क्रॉप्स पे भी ये केमिकल्स जाएंगे. ठीक है, क्रॉप्स पे भी स्प्रे होगा, बट क्रॉप्स को इनसे कोई नुकसान नहीं होता है बिकॉज वीडीसाइड्स आर वेरी स्पेसिफिक. ठीक है, वो वीड्स पर ही एक्ट करते हैं, क्रॉप्स पर वो एक्ट नहीं करते हैं. ओके, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखा रखी है जिसमें एक बंदा है. वो व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ स्प्रेइंग समथिंग ऑन द plants. What is doing? He is spraying weedicides on the plants. Okay, so these are the chemicals that are sprayed and this method is widely used क्योंकि इसके अंदर जो weeds होते हैं वो सीधा मर जाते हैं. ठीक है, and this is method is very easy. just ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है. you have to just spray the weedicides and the weeds will be killed. और यहाँ पे देखो, जो वीडीसाइड्स मतलब है, जिस वर्ड के पीछे साइड्स यूज़ होता है वर्ड. ठीक है, साइड्स वर्ड जहाँ पे यूज़ हो जाता है उसका मतलब होता है नाशक, एक तरह से बोल सकते हैं. जैसे कीटनाशक हम बोलते हैं, वीडीसाइड्स भी. जैसे वीड्स जो होते हैं, वीड्स को मारने वाला मतलब वीडीसाइड. ओके, अगर हम बात करें पेस्ट, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो केमिकल्स होंगे दैट विल बी कॉल्ड इंसेक्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स, द केमिकल्स दैट कैन किल पेस्ट्स आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मीनिंग. यहाँ पे अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर. यहाँ पे जो पर्सन है, ही इज़ हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर, उसके हाथ में वीडीसाइड स्प्रेयर है और वो स्प्रे कर रहा है. सो क्या इस पर्सन पे कुछ हार्मफुल इफेक्ट होगा उसका? द आंसर इज़ येस, ही विल ऑल्सो बी अफेक्टेड, हिज health will be affected. How his health will be affected? Because he is handling the chemicals. ठीक है, उसके हाथ में जो है वो केमिकल्स हैं और वो क्या कर रहा है, he is spraying the chemicals. तो जब केमिकल स्प्रे कर रहा है तो उसके कुछ ड्रॉपलेट्स उसकी बॉडी के अंदर थ्रू हिज माउथ, थ्रू हिज नोज एंटर कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज दीज आर केमिकल्स, तो वो उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. राइट, सो इससे बचने के लिए व्हाट ही कैन डू, ही कैन जस्ट कवर हिज नोज एंड माउथ एंड देन यूज़ दिस स्प्रे. ओके, तो जब वो अपने मुंह को और अपने नोज़ को कवर कर लेगा तो उसको उस चीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप. द नेक्स्ट स्टेप इज़ हार्वेस्टिंग. ठीक है, वीड्स हमने रिमूव कर दिए. ठीक है, हमने
3-4 महीने तक क्रॉप्स का पूरा ख्याल रखा, जितने भी स्टेप्स थे वो फॉलो किए। अब क्रॉप्स हमारी हो गई मैच्योर, मीन्स अब क्रॉप्स हमारी ग्रो कर गई, एकदम फुली मैच्योर हो गई, फुल ग्रो हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे उस क्रॉप्स के साथ, वी विल डू हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग ऑफ क्रॉप्स, वी विल कट द क्रॉप्स, ओके, बिकॉज these crops are matured now, so we will now cut the crops. So what is harvesting? What is harvesting? The cutting of crop after it is mature is called harvesting. जब crop mature हो जाती है, पक जाती है, तो हम उसको कट कर देते हैं, and this process is called harvesting. And in harvesting crops are pulled out or cut close to the ground. ठीक है, हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है? अगर आप स्मॉल स्केल पर देखेंगे, जो फार्मर्स होते हैं, छोटे फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, क्रॉप्स को पुल आउट करते हैं, मतलब खींच लेते हैं, या फिर उसको ग्राउंड लेवल के पास से उसको कट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिक्कल। दिस इज कॉल्ड अ सिक्कल, आपने देखी भी होगी। सो विद द हेल्प ऑफ दिस क्रॉप्स आर कट नियर द बेस, जो ग्राउंड के पास होती है वहाँ से उसको कट कर देते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग मैन्युअली की जाती है विद द हेल्प ऑफ सिक्कल, और मशीन्स के साथ भी की जाती है। दिस इज़ द मशीन शोन हेयर, दिस मशीन इज कॉल्ड कंबाइन। और कंबाइन का मतलब होता है, कंबाइन, यू नो व्हाट मीन्स, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं आपस में, कंबाइन हो जाती हैं, बोलते हैं ना। सो कंबाइन, यहाँ पे इस मशीन का नाम कंबाइन क्यों है? बिकॉज इट वर्क्स एज अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। ये एक हार्वेस्टर का भी काम करती है और थ्रेशर का भी काम करती है। सो नाउ व्हाट इज़ हार्वेस्टर? द मशीन दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड हार्वेस्टर, ठीक है। जो फसल को काटने का काम करेगी उसको बोलेंगे हार्वेस्टर। तो हार्वेस्टिंग का काम तो करती है ये मशीन, उसके अलावा ये थ्रेशिंग का भी काम करती है। सो नाउ व्हाट इज़ थ्रेशिंग? यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखेगा, थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है? देखो, आपने क्रॉप्स को कट कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद अगर आपने क्रॉप देखी होगी, इफ़ वील टॉक अबाउट द वीट क्रॉप, वीट क्रॉप जो आपने देखी होगी, जो वीट के सीड्स होते हैं, वीट के जो सीड्स होते हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं चैफ, चैफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, उस कवरिंग में से उन सीड्स को बाहर निकालना, ठीक है, उस प्रोसेस को बोला जाता है थ्रेशिंग। तो कई बार आपने गांव में देखा होगा, जो वीट की जो प्लांट होता है, जो सूख जाता है बिल्कुल, जो पक जाता है, ठीक है, उसको एक हार्ड सरफेस पे मारा जाता है, ठीक है। थ्रैश का मतलब क्या होता है? पटकना, मारना, ठीक है। तो उसको हार्ड सरफेस पे जब मारते हैं तो उसके जो ऊपर की कवरिंग होती है, छिलका जो होता है, उसके अंदर से सीड्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है थ्रेशिंग का, ठीक है। थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं, सीड्स को बाहर निकालते हैं उनकी कवरिंग में से, उनके ऊपर जो छिलका कवर होता है उसके अंदर से सीड्स को बाहर निकाला जाता है, ओके। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। और थ्रेशिंग का काम मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीनें भी करती हैं, ठीक है। तो उन मशीनों को हम बोलते हैं थ्रेशर्स, ओके, उनको हम बोलते हैं थ्रेशर्स। तो यहाँ पे आपको ये जो पिक्चर दिख रही है, दिस इज़ अ कंबाइन। वाई इट इज़ कॉल्ड अ कंबाइन? बिकॉज इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ हार्वेस्टर एज वेल एज द फंक्शन ऑफ थ्रेशर। थ्रेशर का भी काम करती है और हार्वेस्टर का भी काम करती है, ठीक है। ओके, नाउ एक वर्ड आता है, दैट इज़ विनोइंग, ठीक है, विनोइंग। तो अभी विनोइंग इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के बाद जब आपके सीड्स आपके पास आ गए, आपने उन कवर्स में से, चैफ में से सीड्स को अलग कर दिया, फिर भी उस कवरिंग जो है उसकी, वो जो ऊपर छिलका होता है, उसके छोटे छोटे पीसेस आपके सीड्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। उनको आपको अलग करना है। जब आप वीट को, गेहूँ को पिसवाने के लिए आगे दोगे, ठीक है, तो उससे पहले आपको वो जो छोटे छोटे पीसीज है, बिल्कुल छोटे छोटे तिनके जैसे होते हैं, स्ट्रॉज होते हैं, उनको आपको अलग करना है, ठीक है। तो आप उन जो अलग करते हो उसको, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। और विनोइंग ज़्यादातर विंड की हेल्प से की जाती है, हवा की हेल्प से। इसमें क्या होता है, जब हवा चल रही होती है तो आप थोड़ी सी हाइट से जब आप सीड्स को नीचे की तरफ गिराओगे, तो जो सीड्स हैं, सीड्स आर हैवी, तो वो नीचे सीधा ग्रेविटी की वजह से नीचे सीधे आके गिर जाएंगे। बिकॉज लेकिन जो उसके अंदर जो तिनके हैं, हस्क जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, छिलके हैं, वो क्या होता है, बहुत हल्के होते हैं, तो वो हवा के साथ
बह जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो अलग हो जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग की प्रोसेस को करने के लिए और भी तरीके होते हैं। घरों में हम सीव का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम छलनी बोलते हैं, ठीक है। आपने अगर देखा होगा आपके घर में बड़ों को, ठीक है, तो वो जब वीट के सीड्स को साफ़ कर रहे होते हैं, साफ़ करना इन द सेंस वो क्या करते हैं, वो विनोइंग की प्रोसेस कर रहे होते हैं, मतलब उसके अंदर से जो हस्क होता है उसे अलग कर रहे होते हैं, ठीक है। सो द प्रोसेस इज़ कॉल्ड विनोइंग, ठीक है। अभी हमने कंबाइन की बात की थी, इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। यहाँ पे आपको एक और पिक्चर दी गई है, दिस इज़ डन फॉर थ्रेशिंग, ठीक है। जो ये जो मशीन दिख रही है आपको एक छोटी सी, इससे भी थ्रेशिंग की जाती है, ठीक है। और ये स्मॉल स्केल पर फार्मर्स यूज़ करते हैं, कुछ फार्म जो विलेजेस होते हैं उनके घरों में ये मशीन होती है, ठीक है। लेकिन मेनली जो हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ अ कंबाइन एट अ लार्ज स्केल, ओके। सो नेक्स्ट व्हाट विल सी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। देखो हार्वेस्टिंग जब होती है, जब क्रॉप्स फुली मैच्योर हो जाती हैं, फार्मर्स 3-4 महीने की मेहनत के बाद बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं ताकि उनकी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करें। तो जब वो ग्रो कर जाती हैं, अब क्या करेंगे वो क्रॉप्स को, वो उस क्रॉप्स को काटेंगे, मतलब कि हार्वेस्ट करेंगे, राइट। तो हार्वेस्टिंग जब वो कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी जो 3-4 महीने की मेहनत होती है वो सफल हो जाती है एक तरह से, ठीक है। सो वो उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है उस टाइम पे जो फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, उन फेस्टिवल्स को बोला जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। और एक तरह से वो जो अपनी खुशी है वो मनाते हैं उन फेस्टिवल्स के साथ, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ रिटन हियर। आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क, there comes the day of the harvest. The sight of golden fields of standing crop laden with grains fills the hearts of farmers with joy and sense of well-being. मतलब वो बहुत खुश हो जाते हैं. The efforts of the past season have borne fruit and it is the time to relax and enjoy a little. उन्होंने पास्ट में मतलब बहुत सारा काम किया, 3-4 महीने तक बहुत मेहनत की, तो उनको फल मिलता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो बहुत खुश होते हैं। सो द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुसियाज्म। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबन्या एंड बिहू। पोंगल आपने सुना होगा, इट इज़ फेमस इन साउथ, बिहू इन असम, बैसाखी इन नॉर्थ, स्पेशली इन पंजाब, ठीक है। तो ये सब फेस्टिवल्स रिलेट करते हैं हार्वेस्टिंग सीज़न से, बिकॉज ये फेस्टिवल्स उस टाइम पर आते हैं जब हार्वेस्टिंग सीज़न होता है, मतलब जब फसल को काटने का सीज़न होता है। सो दीज आर रिलेटेड टू हार्वेस्टिंग सीज़न, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, ओके। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. So after harvest, the next step is storage of grains. Now we have harvested the crop, we have separated the grains, हमने grains अलग कर लिए, ठीक है। Now what we will do, what will be the next step, हमारा next step क्या होगा, grains के साथ हम क्या करेंगे, we will store those grains, हम उन grains को क्या करेंगे, store करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लार्ज स्केल पर हम जो हार्वेस्टिंग करते हैं, हमारे पास बहुत सारे ग्रेन्स कलेक्ट हो जाते हैं, तो हम उनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते. व्हाट वी विल डू, वी विल स्टोर देम. ठीक है. तो देखो, जैसे ही हम हार्वेस्ट करते हैं, मतलब सीड्स को अलग कर लेते हैं, तो उस टाइम पे हम उनको सीधा स्टोर नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन सीड्स में होता है मॉइस्चर. मॉइस्चर मतलब कि वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है. अगर हम उसको ऐसे स्टोर करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे. ठीक है, उनमें नमी होगी तो वो ख़राब हो जाएंगे. क्यों ख़राब हो जाएंगे? क्योंकि मॉइस्चर है तो उस पर फंगस आएगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर एक्ट करेंगे, इंसेक्ट्स उस पर एक्ट करेंगे, तो वो ख़राब हो जाएंगे. सो व्हाट वी विल डू बिफोर स्टोरिंग, स्टोर करने से पहले हमें उन सीड्स को क्या करना है, ड्राई अप करना है. ठीक है, उनके अंदर का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो हटाना है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ड्राई दीज सीड्स इन द सन. हम धूप में उन सीड्स को सुखा देंगे. जब वो ड्राई हो जाएंगे देन वी विल स्टोर द सीड्स. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन. If the harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganism. ठीक है, हमें उनको मॉइस्चर से, वाटर, इंसेक्ट्स,
रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे बचाना है और उनको काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रखना है, ठीक है। सो इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर हम बिना ड्राई किए हार्वेस्ट करते ही सीड्स को स्टोर कर दें, देन दे में गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर देंगे, मेकिंग दैम अनफिट फॉर यूज़ फॉर जर्मिनेशन, और फिर वो यूज़ करने लायक नहीं रहेंगे, ठीक है। सो बिफोर स्टोरिंग दैम ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन, इसीलिए स्टोर करने से पहले व्हाट वी डू, वी ड्राई द ग्रेन्स इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट इन दैम, ओके। मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए व्हाट वी डू, वी ड्राई द ग्रेन्स इन द सन, ओके। एंड दिस ऑल्सो प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी, और इसकी वजह से क्या होगा, जो मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी अटैक करते हैं, इसीलिए जब हम ग्रेन्स को ड्राई कर देंगे तो हम उनको बचा सकते हैं इंसेक्ट, पेस्ट से भी, बैक्टीरिया, फंगस सबसे बचा सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू ड्राई द ग्रेन्स बिफोर स्टोरिंग दैम, ठीक है। कई बार घरों के अंदर हम क्या करते हैं, जब हम उनको ड्राई कर लेते हैं ग्रेन्स को, एंड जब हम उनको ड्रम वगैरह में या स्टोर करते हैं जब हम, देन वी पुट ड्राइड नीम लीव्स, ठीक है, सूखी नीम की पत्तियां हम उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, फॉर स्टोरिंग एट होम, ठीक है। वाई वी एड ड्राइड नीम लीव्स, बिकॉज दीज प्रिवेंट्स द ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, जो बग्स होते हैं वो नीम की पत्तियां जब हम डाल देते हैं, नीम की पत्तियां जो हैं, दीज एक्ट एज इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, तो इंसेक्ट्स उसके पास नहीं आते हैं। और फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन्स, देखो नीम की पत्तियां हम तब स्टोर करते हैं जब हम स्मॉल लेवल पे अपने घरों में स्टोर कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत बड़े लेवल पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, बड़े बड़े गोडाउंस में स्टोर किया जाता है, तो वहाँ पे कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि पेस्ट और ऑर्गेनिजम्स को जो हमारे ग्रेन्स हैं उसको बचा सके, ठीक है। वहाँ पे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, फंगीसाइड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, जिससे पेस्ट, फंगस वगैरह सब मर जाएंगे। ड्राई करने के लिए भी ड्रायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े, वहाँ सब मतलब धूप में नहीं सुखा सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से बड़े लेवल पर ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले ये स्टेप्स अपनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ सिलोज। सिलोज क्या होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े ड्रम्स के जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, इनके अंदर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये बहुत लार्ज, बहुत बड़े लेवल पे जब हमें ग्रेन्स को स्टोर करना होता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर हम एक फार्मर की बात करें, फार्मर्स या फिर जो मंडीज़ होती हैं जहाँ पे आपको ग्रेन्स मिलते हैं, तो वहाँ पे जो ग्रेन स्टोर होते हैं इस तरह से गनी बैग्स में स्टोर होते हैं। गनी बैग्स मतलब जो बोरी, जूट बैग्स जो होते हैं हमारे, तो उनमें स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन दीज टाइप ऑफ कंटेनर्स एट अ वेरी लार्ज स्केल, और स्मॉल स्केल पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, सो दीज आर स्टोर्ड इन गनी बैग्स और जूट बैग्स, ओके। सो आई होप दिस हैज़ बिकम क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज़ फूड फ्रॉम एनिमल्स। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कि हाउ वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से हमें फूड कैसे मिलता है, ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ठीक है, हम फ्रूट्स, हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, उसके थ्रू हमको बहुत सारा जो है पल्सेस, ग्रेन्स वगैरह सब मिलते हैं, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज़, can we get food from animals? Yes, we can get food from animals also. So what type of food we get from animals? If we get milk from animals, we get milk products prepared from milk, okay, these are also the animal products like cheese, butter, okay, curd, and we get eggs from animals. Some people eat meat also, okay, chicken, okay, and some people eat fish also. So these all are animal sources, okay. So animals से food obtain करने के लिए what farmers do, they rear animals, means वो animals को पालते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको रहने की जगह देते हैं।
In return, what they do, they obtain food from those animals, and this process is called animal husbandry. Animal husbandry क्या होती है? Rearing of animals to obtain food. Animals को पालना food obtain करने के लिए, this is called animal husbandry. Let's see what is written here. Like plants, animals also provide us with different kinds of food. Many people living in coastal areas, coastal area means सी के पास जो एरिया होते हैं जहाँ पे समुद्र होता है, सो पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज द मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट. क्या खाते हैं वो? फिश खाते हैं. ओके, इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द food that we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps. ठीक है, अभी हमने crop production के बारे में पढ़ा जिसमें बहुत सारे steps थे, like selection of seeds, sowing, manuring and fertilizing, and irrigation, storing, harvesting. Okay, similarly animals reared at home or in farms have to be प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर. इसी तरह से जो एनिमल्स हम पालते हैं घरों में या बाहर खेतों में, फार्म्स में, तो उनको भी हमें प्रॉपर फूड देना होता है, शेल्टर, रहने की जगह देनी होती है और उनकी केयर करनी होती है. ठीक है, जब ये सब प्रॉपरली किया जाता है एंड एट अ लार्ज स्केल, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. ओके, रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल टू गेट फूड इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. फिश इज गुड फॉर हेल्थ. वाई? Because we get cod liver oil from fish which is rich in vitamin D. ठीक है, फिश से हमें क्या मिलता है? कॉड लिवर ऑयल मिलता है एंड दैट इज़ वेरी रिच इन विटामिन डी. तो विटामिन डी, जो लोग फिश खाते हैं उनको विटामिन डी एंड प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी कभी नहीं होती है. ओके, अंडरस्टूड. सो दिस वाज द चैप्टर. नाउ विल सी व्हाट वी हैव लर्नड. So what we have learned from this part, we'll see some important words that came in this part. So these words were animal husbandry. Rearing of animals on a large scale to obtain food is called animal husbandry. Next is granaries. The places where grains are stored on a large scale are called granaries. Harvesting, the cutting of crops, is called harvesting. Silos, the large drum like structures, or we can say large storage tanks where grains are stored, are called silos. Next is storage. You know it very well, what is storage. Grains are stored and protected. Threshing, separating of seeds from the chaff is called threshing. Winnowing, I told you what is winnowing. It is also separating of husk. It is separating of husk from the seeds, okay, by the help of wind. Next is weeds. Unwanted or undesirable plants that grow with the crop are called weeds. Weedicides are the chemicals that can kill the weeds. Okay, so these were the important words. Now we'll see some important sentences. So these are the sentences, or these are the some important points. Weeding involves removal of unwanted and uncultivated plants called weeds. Weeds क्या होते हैं? Unwanted plants, and the process of removal of weeds is called weeding. Okay, harvesting is the cutting of the mature crop manually or by machine. Harvesting क्या होता है? Cutting of the mature crop. And what is threshing? Separation of grains from the chaff is called threshing. Okay, next हमारा था storage. So proper storage of grains is necessary to protect them from pests and microorganisms. Okay, food is also obtained from animals for which animals are reared. This is called animal husbandry. Okay, food animal से भी obtain किया जाता है, and this process is called animal husbandry, where animals are reared to obtain food. Okay, so that was the chapter. Now I have a question for you. Let's see what is the question. So I have given a crossword here, word puzzle. तो इसमें आपको डाउन एंड अक्रॉस कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो उनके आंसर आपको गेस करने हैं एंड यू हैव टू फिल इन हेयर. ओके, सो फर्स्ट विल सी द डाउन सेक्शन. फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग वाटर टू द crops. First point downward. Providing water to the crops, this is called irrigation. Okay, you can write yourself. Okay, I don't have much space. Next point is keeping crop grains for a long time under proper condition. So what it is called? Storage. Okay, this is called storage.
Next and fifth point is certain plants of same kind grown on a large scale. So where is number 5? This is number 5. Crops same plants grown on a large scale is called a crop. Okay. Next we'll see across point number 3. A machine used for cutting the matured crop is called harvester. Okay, HARVEST, harvester. Okay. Next point number 4. A rabi crop that is also one of the pulses. Number 4. Where is number 4? This is the number 4. A rabi crop that is also one of the pulses. That is a pulse also. So the answer is GRAM, gram. Okay. I don't have much space, so I'm writing here. Next is sixth point, a process of separating the grain from chaff. Please find number 6. This is number 6. So what will be the answer? The answer will be winnowing. Okay, WINNOWING. Okay, so that was the question, and here your chapter has been completed. I hope you liked the chapter, and in case of any doubt you can write to me in the comments, and in case of any query also you can write. Okay. Okay, we'll meet again in the next chapter. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू.